Assalamu alaikum. Dear students, this is Mudassir Nazar from TMC School number 13 Kosa. Today I am going to explain the very important grammar of English, that is active passive voice. Here we can see or we will see how to solve active sentence or how to convert active sentence into passive voice. Very first, you should have knowledge about tenses if you want to solve the question or if you want to convert the sentence into active to passive voice, passive voice. So you should have knowledge about tenses, because without tenses, without knowledge of the tenses, we cannot convert the sentence into active to passive voice. So if your tenses is perfect, then you can solve any example which is related to active passive voice. Okay, I hope that your tenses is perfect. Now we are going to start here. Before going to start, we should learn what are the basic rules and regulation to convert active sentence into passive sentence. So here I wrote here already some rules of this related to this grammar. Look at the board and see basic rules of active voice and passive voice, means how we can convert the sentence into active to passive voice. Here some rules are mentioned. One by one we will discuss. Very first, the structure of the sentence. Any sentence in English language has basic structure. For example, here subject, I wrote is short form SVO, that is subject, verb and object. This is the simple and basic structure of English language. इनमें active sentence का ये बेसिक स्ट्रक्चर है. और इफ यू वांट टू चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वाइज, एक्टिव से हम पैसिव में जब अगर कन्वर्ट करेंगे तो वी विल यूज दिस फॉर्म, दिस स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट. इट मींस दैट कि इफ द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस देन और हमें जो है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट को इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा. इट मींस दैट के ऑब्जेक्ट विल गेट सब्जेक्ट प्लेस and subject will get object place when we will convert the sentence into active into passive voice. जब passive voice में हम convert करेंगे तो इस तरीके से changes होंगे. और internal certain changes होते हैं, जैसे by लगाना, helping verb लगाना, verb को V3 में लिखना. this is very important. हर passive voice का sentence को V3 में convert करना बहुत जरूरी है. if you will not do this, our example will not be success. so नेक्स्ट जो है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये जनरल स्ट्रक्चर होता है. जब उसको पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, देन वी को, वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले लेगा. और इंटरनल थोड़े से चेंजेस होंगे. हम जब सेंटेंस को एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. तो दिस इज द बेसिक रूल. नंबर नेक्स्ट, transitive verb. अब suppose that sentence, if sentence has in transitive verb, मतलब कि अगर sentence transitive verb है, sentence में transitive verb use किया गया है. अब transitive question ये होता है कि transitive और intransitive किसको कहा जाता है. तो here we will easily can decide कि what is the difference between transitive verb and intransitive verb. तो हम पहले देखते हैं कि transitive verb किसको कहते हैं. Transitive verb has object and can convert, means that thus if the sentence has object then we can say that this is the transitive verb. मतलब के सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. इफ द और कैन कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, यानी हम ट्रांजिटिव सेंटेंस को, ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब इज अपोजिट टू ट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड एज intransitive verb has no object and can't convert. मतलब जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट कन्वर्ट द सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस. तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता रहना चाहिए. अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर इट इज डिफिकल्ट टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. तो ट्रांजिटिव वर्ब हैज ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है एंड वी कैन कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव, हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. इंट्रांजिटिव वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है एंड देन वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू
पैसिव वॉइस, बिकॉज चेंज द वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, देन ओनली वी कैन कन्वर्ट इट। ओके, सो हियर इट इज 2 पॉइंट्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। उसके बाद सपोज दैट एग्जाम में आपको एग्जाम्पल पूछी गई और इंस्ट्रक्शन दिया गया कि यू हैव टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू एक्टिव टू पैसिव, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड SVO। SVO ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट SVO इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस के अंदर हमें SVO फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा इस्तेमाल किया गया है, वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया गया है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हम ये पता कर लेते तो देन इजीली वी कैन कन्वर्ट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। यहां पर आज हम इट इज डिफिकल्ट टू कवर द होल चेंज द वॉइस टॉपिक इन ए सिंगल लेक्चर, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर सिर्फ प्रेजेंट टेंस के जो 3 टाइप्स हैं एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर पार्ट। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेंटेंस में SVO फाइंड करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये कैसे दिया गया है इसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। अब मैंने आप लोगों को पहले ही यहां पर स्ट्रक्चर में बताया कि एक्टिव को पैसिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट किसकी जगह लेगा, सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, और सब्जेक्ट किसकी जगह लेगा, ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। तो कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, हमें जो सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया गया है, हमने यूज किया है, उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करेंगे। दोनों का प्लेस चेंज होगा, सब्जेक्ट विल गेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल गेट द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। तो यहां पर वही पॉइंट यहां पे हुआ कि कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर हम इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, यूज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब विद सब्जेक्ट। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस वी नीड हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हम कब इस्तेमाल करेंगे, कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द एग्जाम्पल, इट इज टोटली डिपेंड अबाउट द टेंसेस। टेंसेस के ऊपर डिपेंड रहेगा कि विच टाइप्स और विच हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज इन द सेंटेंस। तो यूज सुटेबल, दैट इज व्हाई आई हियर राइट दैट सुटेबल। सुटेबल इट मीन दैट अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस जैसा दिया जाएगा उसके मुताबिक हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो ये कैसे पता चलेगा, हाउ वी नो अबाउट के विच टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब वी कैन यूज, कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, ये कैसे पता चलेगा, तो टेंसेस के वजह से हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। व्हाई आई एम टेलिंग यू लाइक दिस, बिकॉज हर टेंस का एक अलग फॉर्मेट है, एक अलग फॉर्मूला है उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। तो जैसा टेंस रहेगा वैसे ही हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल उसके मुताबिक करना होगा। तो यहाँ पे वही पॉइंट बताया गया कि यूज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमें सुटेबल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना रहेगा। अब सब्जेक्ट भी डिसाइड करेगा, ओके, टेंसेस डिसाइड करेगा, उसके बाद सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है वो भी आपको बताएगा कि आपको सब्जेक्ट प्लूरल इस्तेमाल करना है या सिंगुलर इस्तेमाल करना है। दिस इज डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट एंड टेंसेस। तो यहां पर ये भी पॉइंट क्लियर होता है कि हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। उसके बाद नेक्स्ट, कन्वर्ट मेन वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म। अब यहां पर कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वर्ब को V3 में लिखते हैं। V3 मींस वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद हमें उसको V3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी क्लियर होता है, कन्वर्ट करना, तब्दील करना। कन्वर्ट मेन वर्ब, सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब दिया गया है, मेन वर्ब जो दिया गया है उसको हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद यूज प्रीपोजिशन बाय, हमें यहाँ पर प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मीन्स जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो लफ्ज, जो वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा उससे पहले हमें प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करना होगा। तो दीज आर द बेसिक रूल ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस सेंटेंस को तब्दील करने के लिए ये सारे बेसिक रूल्स हैं। इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे दिया गया है। ओके, उसके बाद अनदर जो रूल है यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिटिल बिट चेंजेस होंगे, थोड़े बहुत उसके अंदर तब्दीलियां होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट अगर आई इस्तेमाल किया गया है
तो जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम बाय के साथ आई नहीं लिखेंगे, बल्कि इट इज कन्वर्टेड इनटू मी। आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। हम आई नहीं लिखेंगे बल्कि उसको मी में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वी विल नॉट गेट मार्क्स एंड आवर आंसर विल नॉट बी करेक्ट। ओके, तो और सेंटेंस में सपोज दैट वी इस्तेमाल किया गया है, इट इज कन्वर्टेड इनटू अस। यू इस्तेमाल किया गया है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यू। दे इस्तेमाल किया गया है तो उसका देम हो जाएगा। ही इस्तेमाल किया गया है तो हिम हो जाएगा। शी इस्तेमाल किया गया है तो हर हो जाएगा। और अगर सपोज दैट एज ए सब्जेक्ट किसी शख्स का नाम आया है, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल है, तो राहुल विल बी रिमेन सेम एज ए राहुल, वी कैन नॉट चेंज। अगर नाउन इस्तेमाल किया गया है सब्जेक्ट के तौर पर राहुल, किसी शख्स का नाम, नेम ऑफ द पर्सन इस्तेमाल किया गया है, तो वी कैन नॉट चेंज इट, हम उसको सेम टू सेम वही लिखेंगे। तो दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंस। एक्टिव को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको ये रूल्स समझ में आ जाते हैं तो फिर कोई भी एग्जाम्पल हो आप बहुत ही आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट टुडे वी विल डिस्कस ओनली ऑन प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस है हमें उसके ऊपर ही डिस्कस करना है। एक बार फिर से हम रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, फिर हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यह देखना है कि बेसिक रूल्स क्या है। एक्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, उसको जब पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, एंड इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहा जाता है, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ब जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। इट मीन दैट इफ द सेंटेंस हैज ऑब्जेक्ट देन वी कैन से दैट दैट सेंटेंस हैज ट्रांजिटिव वर्ब, एंड इफ द सेंटेंस हैज ट्रांजिटिव वर्ब देन वी कैन कन्वर्ट दैट सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस में उसी वक्त तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया हो, तभी हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी तरीके से उसके बाद इनट्रांजिटिव वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब को समझना बिल्कुल आसान है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। इफ द सेंटेंस हैज नो ऑब्जेक्ट, इफ द सेंटेंस हैज नो ऑब्जेक्ट देन वी कैन नॉट चेंज दैट सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंस। ट्रांजिटिव वर्ब हैज ऑब्जेक्ट, कैन कन्वर्ट, ऑब्जेक्ट होता है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद इनट्रांजिटिव वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, कैन कन्वर्ट, हम उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते बिकॉज सेंटेंस हैज नो ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको ध्यान देना है। ट्रांजिटिव वर्ब हैज ऑब्जेक्ट, कैन कन्वर्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट, कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द पैसिव वॉइस। ओके, उसके बाद जब भी एग्जाम्पल दी जाएगी, आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा तो फौरन आपको क्या करना है, SVO फाइंड आउट करना है, अंडरलाइन करना है, सब्जेक्ट क्या दिया गया, वर्ब क्या दिया गया एंड ऑब्जेक्ट क्या इस्तेमाल किया गया है। तो हमें वो फाइंड आउट करना है, फाइंड SVO, सेंटेंस के अंदर SVO को फाइंड आउट करना है। देन कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट जो दिया गया है, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ओके, यूज सुटेबल हेल्पिंग वर्ब विद द सब्जेक्ट। सुटेबल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। मैंने पहले ही कहा कि ये टेंस आपको बताएगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, और सब्जेक्ट भी आपको इंडिकेट और पॉइंट करेगा कि आपको प्लूरल इस्तेमाल करना है कि सिंगुलर इस्तेमाल करना है। उसके बाद कन्वर्ट मेन वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि पैसिव वॉइस में हर सेंटेंस का आंसर थर्ड फॉर्म के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, यूज प्रीपोजिशन बाय, और बाय का इस्तेमाल करना है। इतनी सारी यहाँ पर जितने भी रूल्स मैंने बताए कि जो मैं रूल बताया आपको, आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। और नेक्स्ट जो है हम
इसके एग्जाम्पल हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सपोज दैट सेंटेंस अगर पेपर में आपको पूछा जाता है प्रेजेंट टेंस के ऊपर, उसकी इंस्ट्रक्शन दी जाती है चेंज द वॉइस, तो आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है हम वो देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये आपको समझ में आ गया, हम इसको रब करते हैं, देन यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल लेंगे और इसको चेंज द वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, बिफोर गोइंग टू लर्न, हम इसको सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला दिया गया है तो हमें कौन सा फॉर्मूला या सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए कौन से फॉर्मूले के हिसाब से हमें चेंजेस करना पड़ेंगे, वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम चेंज द वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब या तो इज इस्तेमाल होगा, या तो एम इस्तेमाल होगा, या तो आर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इज एम आर ये इस्तेमाल होगा। उसके बाद मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करेंगे बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट जो सेंटेंस में दिया गया है हम उसको यहां पर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जाम्पल लिखता हूं जिससे आपको समझ में आएगा और हम उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर, यहाँ पे एक सिंपल से एग्जाम्पल है, शी राइट्स अ लेटर। अब मैंने रूल्स में आपको पहले ही बताया गया कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये आपको कब हम क्या करेंगे, पहले एसवीओ हम फाइंड करेंगे कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है। तो शी यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, व्हाट शी इज डूइंग यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और ये क्या हो गया, अ लेटर, दिस विल बी ऑब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फाइंड एसवीओ, हमने एसवीओ फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दिया गया तो वी कैन इजीली से दैट कि दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज इट हैज ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये एसवीओ अब हमको फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी विल चेंज दिस एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे। तो फॉर्मूला सबसे पहले दिया गया कि ऑब्जेक्ट लिखना है। अब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, अ लेटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ लेटर। यहां पर ए स्मॉल है, हम यहाँ पे कैपिटल करेंगे क्योंकि सेंटेंस बिगिन होता है तो कैपिटल लेटर से होता है। अ लेटर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट अ लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा वो आपको सब्जेक्ट बताएगा। हेल्पिंग वर्ब या तो इज इस्तेमाल करना है, एम और आर, तो यहां पर क्या इस्तेमाल होगा, इज इस्तेमाल होगा, बिकॉज ये लेटर जो है सिंगुलर में है। अगर लेटर्स होता तो हम आर का इस्तेमाल करते। तो अ लेटर इज यहां पे क्लियर हो गया हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। उसके बाद V3 वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहां पे वर्ब दिया गया राइट्स, हम राइट को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है और उसका थर्ड फॉर्म रिटन रिटन होता है। वी कैन नॉट यूज रोट, तो हियर वी विल राइट रिटन। अ लेटर इज रिटन। अब उसके बाद हम प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे, बाय। अब यहां पे सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या इस्तेमाल हुआ था, शी इस्तेमाल हुआ था। अब मैंने यहां पे ऑलरेडी पहले बताया था कि शी को हम उसके ऑब्जेक्ट फॉर्म में तब्दील करेंगे तो शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमले को हम चेंज द वॉइस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब तब्दील करेंगे तो इस तरीके से होगा, अ लेटर इज written by her, she writes a letter is written by her. This is the example of simple present tense के जुमले को हम इस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लेते हैं। अगर सपोज दैट सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पूछा गया है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है तो हम किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एज इट इज फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही इस्तेमाल होगा। यहाँ पे इज एम और आर का इस्तेमाल होगा।
उसके बाद बीइंग का अजाफा करेंगे, फॉर्मूले में बीइंग का अजाफा होगा, बीइंग यहां पर हम लिखेंगे। उसके बाद V3 करेंगे, एज आई टोल्ड यू दैट के बगैर थर्ड फॉर्म के हम चेंज नहीं कर सकते हैं। V3 लिखेंगे, उसके बाद बाय लिखेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट। ठीक है, वही एग्जाम्पल को हम जो है कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर तब्दील करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं ये एग्जाम्पल को कंटिन्यूअस में, शी इज राइटिंग अ लेटर। ओके, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब हमें एक्टिव से पैसिवाइज करना है इसको, ये सेंटेंस एक्टिव में है, उसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एसवीओ फाइंड आउट करना है। तो सेंटेंस में एसवीओ हम देखते हैं, शी एज ए सब्जेक्ट, इज राइटिंग एज ए वर्ब, अ लेटर एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे। तो किस तरीके से एक्टिव से पैसिवाइज में तब्दील होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अ लेटर। फॉर्मूले के हिसाब से ऑब्जेक्ट क्या दिए गए, अ लेटर। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, बिल्कुल उसी तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, ऑलरेडी दिया गया, तो उसको चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ हमें यह देखना है कि प्लूरल में इस्तेमाल होगा। अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आकर प्लूरल हो रहा है तो आर का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज सिंगुलर है तो इसका इस्तेमाल रिमेन सेम रहेगा, ए लेटर इज। अब उसके बाद, अब चूंकि सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, सेंटेंस जो है वो सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, तो हमें उसको चेंज नहीं करेंगे, बल्कि कंटिन्यूअस सेंस को बाकी रखने के लिए उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, बीइंग का अजाफा करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे बीइंग। उसके बाद V3, एज आई टोल्ड यू, देखिए राइट का, राइटिंग का क्या हो जाएगा, रिटन, बीइंग रिटन, बीइंग रिटन। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे, बीइंग रिटन बाय, शी दिया गया तो बाय हर हो जाएगा। इस तरीके से जो है कंटिन्यूअस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? यहां पर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस तरीके से चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरीके से चेंज करेंगे। अब उसके बाद प्रेजेंट टेंस के अंदर एक और टेंस है बचता है, जिसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर इस तरफ रब को, बोर्ड को रब करता हूं, देन वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर सेंटेंस दिया गया है, सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस दिया गया है, तो उसको हम किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि कैसे फॉर्मूला इसका चेंज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट लिखेंगे फॉर्मूले के अंदर, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, या तो हैव इस्तेमाल, हैज इस्तेमाल होगा, या तो हैव इस्तेमाल होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस में है तो परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम इसके अंदर फॉर्मूला लिखेंगे, बीन का अजाफा होगा, बीन लिखेंगे, बीन प्लस V3 लिखेंगे प्लस प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे, देन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का इस्तेमाल करना है, बीन लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, बाय लगाना है, और उसके बाद सब्जेक्ट जो है एज इट इज लिखना है। तो यही एग्जाम्पल को हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज दैट शी राइट्स अ लेटर को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लिखेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे शी, अब चूंकि शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हैज का इस्तेमाल होगा, शी हैज रिटन अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। हम इसको जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले SVO हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे शी एज ए सब्जेक्ट,
हैज रिटन एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है और अ लेटर एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसको चेंज करेंगे। किस तरीके से चेंज होगा एक्टिव से पैसिव वॉइस में? तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अ लेटर, यहां पे लिखेंगे अ लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का इस्तेमाल होगा। जिस तरीके से प्लूरल के अंदर हमने इज इस्तेमाल किया, आर इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर के लिए इज इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट टेंस के अंदर सिंगुलर के लिए हैज इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए हैव का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे शी अ लेटर, इट इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो हम यहाँ पर हैज का इस्तेमाल करेंगे। अ लेटर हैज, हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बीन का इजाफा करेंगे क्योंकि सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए लेटर हैज बीन। V3 ऑलरेडी दिया गया, रिटर्न पहले ही थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ, वही की वही कॉपी करेंगे, रिटर्न। उसके बाद बाय लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, शी है, शी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट हर। इस तरीके से जो है सेंटेंस जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर दिया जाता है तो उसको इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। शी हैज रिटन अ लेटर, सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, वर्ब इस्तेमाल हुआ, ऑब्जेक्ट है ये। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट अ लेटर इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब हैज का इस्तेमाल किया, बीन का इजाफा किया, उसके बाद रिटन, वर्ब को थर्ड फॉर्म में रिटन में लाया और बाय हर, सब्जेक्ट को बाय के साथ हमने उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज द सिंपल वे टू कन्वर्ट द सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस सेंटेंस इनटू एक्टिव, प्रेजेंट टेंस सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस। हम किस तरीके से चेंज करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, मैंने आप लोगों को बताया और आई होप दैट कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, फॉर्मूले को मगअप कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला दिया गया तो हमें फॉर्मूला ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला आपके माइंड में सेट है तो यू कैन नॉट कमिट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, यू कैन इजीली सॉल्व दैट ग्रामर। ओके, इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका फॉर्मूला ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, बीइंग का इजाफा करेंगे क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में, V3 लगाएंगे, बाय और सब्जेक्ट लगाकर इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे शी इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर हो जाएगा। एज इट इज आई टोल्ड यू दैट कि प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो फॉर्मूला ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का इस्तेमाल होगा, बीन का इजाफा करेंगे, V3 लगाएंगे, बाय और उसके साथ हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस है उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करेंगे, सो दीज आर द फॉर्मूला and these are the way we can easily convert the sentence into passive voice. Okay, present perfect continuous tense को हम change the voice में convert नहीं कर सकते हैं। tenses के अंदर कुछ ऐसे parts है जिसको change the voice में convert नहीं किया जाता because of the grammar's rule, grammar की rule की वजह से। I hope that आपको ये lecture समझ में आया होगा। ये हमारा first part था passive voice का। उसके बाद हम next part में आगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंदर किस तरीके से सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।